Okay. Good morning, everyone. So today I'm going to start the new topic in natural gas engineering. Yesterday we discussed the numericals based on the estimation of natural gas properties. So I have forwarded you the slides also of these numericals. Hope you have seen them. Any doubt, any confusion regarding the discussed numericals? So you can tell me now. Okay, there is no confusion. Let us move ahead with the next topic, which is the gas flow through the pipelines or tubings, wellbore. Okay. So, gas, like as we already know, because you have already gone through the pipeline engineering course, so we know the pipeline transportation of any hydrocarbon is the most convenient and continuous process of transmit transportation. So in this section, we will focus especially on the gas flow through the wellbores and pipes. So gas flow through the wellbores can be horizontal, it can be inclined, it can be vertical. It also passes through the important flow measurement devices like chokes for flow control. There may be other flow measurement devices also like metering devices, और if इस मीटर हो सकता है, flow nozzles हो सकते हैं, pitot tube हो सकती है. So this chapter will actually discuss the first gas flow fundamentals, okay, and then gas flow measurement. So we will also measure and I will also present the devices which we use to measure the gas flow in pipelines or wellbore. ठीक है? So now, for any hydrocarbon flow, for any flow, the principal equation is defined by the energy equation. So in energy equation, I can write the energy equation like this, which is starts with the internal energy plus kinetic energy plus potential energy. Yes, work done on the fluid and heat added to the system will also be added on the left hand side. So on right hand side will be what is the work done by the fluid. That is the energy balance equation. Okay? Or you can say if we take this work done by the fluid on left hand side, so it will be equal to 0. Okay? So any equation based on the fluid flow can be written actually by the energy balance equation. So I have written the energy balance equation considering internal energy, potential energy, kinetic energy, heat added to the system and work done on the system is also added. Suppose it is there. Then whatsoever will be the work done by the system will be on the right hand side to balance the energy equation. So I have written, so this will be the main equation. So we can further write this equation in this form. Del U del V square by 2G C, then G by GC of dz plus this is heat added to the system. This is heat added to the system and work done on the system. This is the shaft work which we will receive from the system and is equal to 0. Okay? Now please look at the units carefully. These are the units which are the field units. We are taking the examples of the field units here. So pressure will be defined in the pound force per foot square. Therefore, we have used this
conversion factor also. ठीक है, its value is 32.2. ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं. तो कन्वर्जन फैक्टर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उसको मैंने यूज किया है इसमें. ठीक है, और बाकी सब एनर्जी के टर्म्स हैं. लाइक आपके पास काइनेटिक एनर्जी टर्म है, वर्क डन है, इंटरनल एनर्जी है, डेल यू. ठीक है, तो इसका यूनिट भी मैंने लिखा है 30. जीसी को आप लिख दो चाहे तो 32.2 पाउंड फिट. ये कन्वर्जन के लिए यूज होगा हर बार. पाउंड फोर्स सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बाकी सब हमें पता है. यूनिट का खाली इंपॉर्टेंस है. यू कैन आल्सो यूज द डिफरेंट यूनिट, बट द फील्ड यूनिट्स वी आर यूजिंग, like volume will be the feet cube per pound mass. This is the unit of the cube. Work g is equal to gravitational acceleration. We have just converted them in the real units, real field units, by using gc. Now this equation can also be written as like this. ठीक है, because now this internal energy can also be written as this. du is equal to tds minus pdv. ठीक है, आपको याद आ गया होगा u is equal to w plus del u. मैंने वही लिखा है खाली. ठीक है, तो Q को रिप्लेस कर दिया है TDS से, विच इज इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, एंड W होगा PdV, वर्क डन. तो del U कैन बी रिटन एज TDS minus PdV. Now if you put this in this equation and then you take the derivation of this term, so you will have PdV plus VdP both. So what will be there if you put this, replace this du by this, so TDS will be there but PdV will be cancelled out. ठीक है, so finally equation will have all these terms. ठीक है, so if you have any doubt regarding at any moment, please let me know. Again, the entropy, this as per the second law of thermodynamics, for an ideal process can be written as this. Hypothetically there is no ideal process in the thermodynamics. ठीक है, but entropy can be written in this form like this, minus del Q by del T. So ds can be again replaced by this term. So further what you will have this, you will end up finally with this equation. So this term will have VdP finally, there will be kinetic energy term, potential energy term. This is the work terms. So this is the work given by the shaft and this is the frictional work जो पीछे से आ रहा है हमारे साथ में, जो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया ना VD 1 मिनट. So this term will have dq by dt रखने पे TDS कट जाएगा, इस TDS की जगह आ जाएगा, ये कट जाएगा, एंड VDP this इस वर्क टन को एक्सपेंड करके लिखा गया है. Okay, this work coming from where?
wait a minute here. So I have derived the equation finally in this form. PdP del V square by 2gc g by gc dz minus dws. So that is the work positive hai. So it means it's a work given to the system. And then this is the work from the system. So this whole work done finally is written in this form. ये वर्क टर्म कहाँ से आया है? इक्वेशन अच्छा इसको बाहर ले लो जरा. dl is equal to lw minus this term will be positive. Okay. That is not clear from this equation. Okay, I'll see this again one more time. Why this equation is not derived with DWS. This is having DLW also. This looks to me like a work added to the system, but work added to the system is already here. And then PDV will be cancelled out with this term if we write TDS plus this. तो DWS बचेगा and DQ कट जाएगा. DWS ही बचना चाहिए, which is soft work, and it will be on the right hand side. Now I'll see this right now. तो और मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ से आ रहा है. Okay, wait a moment here. Let me just see this. We have this equation. There we have replaced ds is equal to minus dq by t, and what we are ending up with this. Actually, this might be the work edit. This is clear from the expression because it is clear. Listen, everyone. This is clear from the expression that this is added to the system. But if we look at the expression of this ds is equal to del q by t दिया हुआ है. So ds is equal to 0 for actually the reversible process. We know this. ये thermodynamics आपने पढ़ा होगा first year में. Del q by t is equal to 0. Otherwise, del q by t is always greater than 0 for real systems. But if you have del s is equal to, it means for an ideal process, ds is equal to, suppose, because no process is ideal, तो यदि ds is equal to minus dq by t है, तो ds will always increase if we balance this by some work. That may be this, I think so. So I can write this expression that ds is equal to, if the process is reversible, suppose, so dq by t is equal to 0. We know this.
बट इफ ds इज हाँ या तो बड़ा होगा या ज्यादा होगा फॉर दी अदर केसेस ds विल बी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई टी, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो q इज इक्वल टू del u प्लस w तो दिस इज TDS इज इक्वल टू du प्लस dw। तो ये जो वर्क है ना आपके पास हमेशा ही रहेगा। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस ds इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई टी ज्यादा है तो इधर आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, दैट इज द वर्क गिवन टू द सिस्टम। ओके, so that may be the factor coming from this equation here. Yeah, this might be the work added to the system in order to balance this equation, because ds always increases for the universe for irreversible process. For reversible it is 0, but reversible होता नहीं है। adiabatic reversible process thermodynamics में like hypothetically होता है, समझ सकते हैं आप, but the real case में this will be like this। बट यदि माइनस डी क्यू बाई टी है तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस वी हैव टू ऐड समथिंग हियर आल्सो। तो ये DLW आई थिंक वर्क है जो हमने सिस्टम को दिया टू बैलेंस आउट द इक्वेशन, तो ये यहीं से आ रहा है। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन है, आई थिंक यू ऑल आर लिसनिंग दिस। यदि आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, आई कैन अगेन रिपीट। द इक्वेशन इज दैट we are actually using some thermodynamic fundamentals because internal energy equation भी वहां पे है टर्म। तो इंटरनल एनर्जी इक्वेशन को आप थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी से भी जोड़ोगे। तो एंट्रोपी का इक्वेशन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए मैंने लिखा, बट रिवर्सिबल होते नहीं है तो ds विल ऑलवेज इंक्रीज, ज्यादा ही होगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने DLW इधर जोड़ दिया। इट्स ए वर्क डन, सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट मींस यू आर गिविंग समथिंग टू द सिस्टम। तो ये जुड़ के कुछ कह सकते हैं टर्म वर्क का। फाइनली नाउ यदि आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन विल बी फाइनली विद दिस रो v स्क्वायर del v स्क्वायर बाय 2g g बाय gc रो gz एंड रो del ऑफ lw। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया del ऑफ lw से। नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क, इसको नेटवर्क बोलते हैं। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा होगा, दिस इज नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस वर्क गिवन बाय द सिस्टम, तो वो टोटल हमने नेटवर्क में लिख दिया। अब इसमें जो भी होगा, आपने जो भी सिस्टम को दिया और जो भी सिस्टम से आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी काउंटेड हियर इन डेल LW। ठीक है, तो उसी को फर्दर फिर सॉल्व करके देख लो। तो जस्ट डेरिवेशन है नाउ। अब आप सॉल्व करके देखो। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रो वी डी बाई म्यू, वी नो दी रेनॉल्ड्स नंबर आल्सो। तो फॉर द क्रॉस सेक्शनल, हाँ यस हाँ, ये भी फंडामेंटल आप जानते होगे। इफ वी डोंट हैव दी सर्कुलर एरिया फॉर द फ्लो ऑफ गैस, तो हमारे केसेस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनुलस फ्लो होगा या फिर ट्यूबिंग फ्लो होगा। तो एनुलस से भी फ्लो होगा, ट्यूबिंग से भी फ्लो हो सकता है। जब ट्यूबिंग से फ्लो होगा तो इट्स ए सर्कुलर एरिया, बट जब एनुलस से फ्लो होगा तो द एरिया विच इज अवेलेबल फॉर द फ्लो विल नॉट बी सर्कुलर। So that area or that diameter which you want to use in Reynolds number will be replaced by the effective diameter. So effective diameter will be 4 of the hydraulic radius. तो hydraulic radius को हम डिवाइड कर देते, कैसे डिफाइन करते हैं? So effective diameter will be equal to 4 of hydraulic radius. Hydraulic radius will be the area of the flow upon wetted parameter. Yes, we have a question here. Sir, in heat added to the system, it would TDS. Why have taken minus TDS? Where? Shalu, in this equation, heat added to the system is positive here. I have written del Q. So what term you are talking about? This is the equation
जिसमें heat added to the system is positive. I have taken heat energy added to system or fluid in a positive. तो पॉजिटिव से ही लिखा है मैंने. वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस में है. कहां पर आप बोल रहे हो? प्लीज लेट मी नो. हाँ, यस वी हैव, ये पूछ लो ना. तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो आपके पास आइडियल सिस्टम्स हैं, जब आप डेल क्यू बाय डेल टी आपने पढ़ा होगा, इज ग्रेटर देन जीरो और इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो डेल क्यू बाय डेल टी जो है उसको हम इक्वल टू जीरो लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. बट एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो रियल प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, तो इन दैट केस डेल क्यू बाई डेल टी या डेल एस बाई डेल टी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. तो यूनिवर्स का जो आप ये भी बोल सकते हो कि एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है. बट आपके एक्सप्रेशन में यदि डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब आपने एंट्रोपी नेग्लिजिबल कर दिया है. देख लो आप. तो डी एस इज इक्वल टू, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ना है हमेशा, तो माइनस डेल क्यू बाई डेल टी लिखा है. और इक्वल टू हो नहीं सकता क्योंकि ये रियल प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस नहीं, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है. तो आइडियली डेल एस विल ऑलवेज इंक्रीज, तो मैंने उसको बढ़ाते हुए लिखा है. और इसको यदि आप इक्वल टू करना है, देन यू हैव टू ऐड समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड. यहाँ कुछ जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए आपको वर्क फॉर्म में ही देना होगा. तो मैंने वर्क फॉर्म में दिया है. तो खाली मैंने इस इक्वेशन को जो इसमें दिखाया है, दैट इज नॉट द कंप्लीट इक्वेशन. This will be complete if you write like this. Now, finally, that's what I have told. Yes, anything else, Alu? Anybody else? आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखो. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट यू हैव टू रिप्लेस राइट हैंड साइड बाय सम एक्सटर्नल वर्क. एक्सटर्नल वर्क दिया और इक्वेशन को, क्योंकि इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता है, तो मैंने क्या किया है, ग्रेटर देन रखा है फॉर दी इरिवर्सिबल प्रोसेस या आइडियल प्रोसेसेस के लिए. मतलब आपको जो रियल प्रोसेस है उसमें बढ़ता हुआ मिलेगा. टू बैलेंस दिस आई हैव एडेड समथिंग टू द सिस्टम, दैट्स ऑल. तो उसी में को मैंने फिर फाइनली नेटवर्क में लिख दिया. तो नेटवर्क से ये आया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास, in order to define the Reynolds number for the circular sections, we write equation like this. Here d is the diameter for the circular section, but if the section is not circular and it is supposed like this case, so this area will be used for the flow, and that is defined then for, I mean it is for every channel which is not circular. Like आपके पास channel भी हो सकता है इस तरह से, स्क्वायर चैनल भी हो सकता है. तो वो भी आप किससे डिफाइन करेंगे? डीई या फिर हाइड्रोलिक रेडियस से ही डिफाइन करेंगे. व्हेन द सेक्शन और द फ्लो इज नॉट सर्कुलर, इट इज डिफाइंड बाय द हाइड्रोलिक रेडियस और इफेक्टिव डायमीटर. तो मैंने इफेक्टिव डायमीटर ऐसे लिखा है, या फिर आरएच से डिफाइन कर दीजिए. तो इफेक्टिव डायमीटर विल बी 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस. तो हाइड्रोलिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए अपॉन चाहिए एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर. तो वही निकाला है खाली मैंने. तो hydraulic radius is defined by the area of flow upon weighted parameter. तो area of the flow कितना होगा एनुलस का? You can see this. This is the internal diameter of the casing square minus outer diameter of the tubing. वही किया है बस मैंने. This is outer diameter of the tubing and the internal diameter of the casing is this. तो दोनों का डिफरेंस करोगे स्क्वायर, तो ये दिस इज द एरिया विच इज अवेलेबल फॉर द फ्लो. ठीक है. अपॉन वेटेड पैरामीटर कितना होगा? दिस
2 पाई RCI प्लस RTO या फिर पाई DCI प्लस DTO। तो वेटेड पैरामीटर क्या होगा, इससे वेटेड पैरामीटर दोनों जो इंटरफेस है ना, ये वाला, दिस वन, और इंटरनल जो है, दिस विल बी दी वेटेड पैरामीटर। तो दैट इज एक्चुअली दिस, एंड तो इनको डिवाइड कर दो तो आपके पास D आ जाएगा DCI माइनस DTO। Now you can use this in order to define the Reynolds number for these cross-sectional areas which are not circular। ठीक है, तो रो वी डी में D को रिप्लेस कर दीजिए D से, तो D को हम निकाल सकते हैं इजिली बाय एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर से। याद रखना, किसी भी ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां पर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर नहीं है, तो वहां पर आप हाइड्रोलिक रेडियस और इफेक्टिव डायमीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। Now after that we are also defining the new term, which is not new term, it's a mass flow rate. Mass flow rate is defined by the rho A for the natural gas, rho AV। ठीक है, तो AV is equal to actually the flow rate। I can write A into equal to flow rate, area into velocity, and the density is replaced by this। ठीक है, तो डेंसिटी कितना होगा, PM इज इक्वल टू ZRT, इक्वेशन से निकाल लीजिए यार, इसमें आ जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से भी कर दीजिए, तो सॉरी, PV इज इक्वल टू ZRT M/M। तो इसमें से डेंसिटी निकालने जाएंगे आप, तो M अपॉन V इज इक्वल टू PM अपॉन ZRT, तो वही रिप्लेस किया है खाली, तो आपके पास इक्वेशन फाइनली ये बचेगी। ठीक है, but now what we are calling this we are using as a PSC, because the flow rate which we are talking about here will be in SCFD, because we are defining this flow rate at the surface. So instead of using cubic cc per second or cubic feet, we will use SCF, or you can also use only SCF, no problem. You can use SCFD also in this equation, but particularly this equation is derived for MSCFD। ठीक है, तीनों ही यूनिट हैं स्टैंडर्ड टर्म्स में फॉर गैस फ्लो। तो जो सरफेस पे मेजर होता है, और सरफेस के फ्लो रेट को आप हमेशा QSC लिखेंगे। दिस इज द फ्लो रेट ऑफ नेचुरल गैस एट सरफेस, और जो भी सरफेस पे फ्लो रेट होगा वो SCF में ही डिफाइन होगा। तो फ्लो रेट को इसलिए जब SCF में डिफाइन कर रहे हो, तो देन दी प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी आल्सो ऑफ द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो वही इसमें यूज किया है आपने। A और V की जगह लिख दिया है QSC, रो की जगह लिखा है PM/ZRT। तो दिस इक्वेशन इज दी दिस, बट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इन दिस M और D का रिप्लेसमेंट भी करना है, तो M क्या होगा 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और D होगा 24 इंटू 360 इंटू 60। तो बस कन्वर्जन करके इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो मास फॉर द नेचुरल गैस एट सरफेस इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। एक्चुअली में इक्वेशन यही है, Q M P ZRT। ठीक है, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय द स्टैंडर्ड वर्ड, तो दिस विल बी QSC एंड आल्सो दी स्टैंडर्ड। C आप जानते हो 1 होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, the final equation will reduce to this form। Again in this equation PSC, ठीक है, तो वो M दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, but you should also look at the relevant units। So it's not necessary that you use the same equation, but just for the for standard unit form में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो here फीट स्क्वायर में एरिया होगा 10.732 में यूज, PSC आप स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ZSC 1 होगा और ग्रेविटी 1। ठीक है,
ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। आपके पास मॉलिक्यूलर वेट भी था, तो इस मॉलिक्यूलर वेट को भी हमने इसने रिप्लेस कर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट होगा 28.97 इनटू गैस ग्रेविटी, तो उससे भी रिप्लेस कर दीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, ये सब मल्टीप्लाई करके सबको सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन ये टर्म आएगा। ठीक है, तो फाइनली मास फ्लो रेट फॉर द नेचुरल गैस एट सरफेस will be defined by this. So now if a numerical is given and they are asking suppose mass flow rate at the surface and the flow rate is given, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कन्वर्जन फैक्टर यूज कीजिए एंड QSC गामा PSC अपॉन TSC से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑल यूनिट्स शुड बी इन दिस फॉर्म, द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन दिस फॉर्म, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड formula, you can drive this in another form also, but in terms of this fit form में लाने के लिए, तो ये एक प्रोसीजर है, तो उस टर्म्स में लाने के लिए इसको ड्राइव किया गया है। You can drive this in another form also. Further, yes, thus for the circular diameter, I can also write D is equal to this, so रो D में आप D को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपने रेनॉल्ड्स, ये इक्वेशन है ना फाइनली ये वाला, तो इसमें मैंने क्या किया, रो वी को यहीं पे रखा और ए स्क्वायर को मैं इधर ले गया फॉर द सर्कुलर केस, तो रो वी निकाल लिया फाइनली आपने। कितना आया, आर यू गेटिंग दिस, दिस इज द इक्वेशन। नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस राइट हैंड साइड बाय ए फॉर द सर्कुलर केस, so this will be the finally equation. Now you can now also write this in Reynolds number, so you can use this in Reynolds number, this rho v value, and finally equation will be of this form. Now in this equation again, if you put PSC and TSC, finally Reynolds number will be of this form. तो Reynolds number का एक नया फॉर्म आपको दिख रहा है, जिसमें 20 QSC into gas gravity upon mu d आया है। ठीक है, so this Reynolds number is not in like a conventional Reynolds number. This Reynolds number is particularly derived for the natural gas flow when you have QSC at the surface. तो यदि आपको QSC दिया हुआ है डायरेक्टली, अदरवाइज सब हम जानते ही हैं, ये वो स्मूथ पाइप्स, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ द फ्लो रेट आई जस्ट वांट, सपोज आपको डायरेक्टली QSC दिया हुआ है कि 10 MSCF पर डे है, तो डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द नेचुरल गैस, यूज दिस फॉर्मूला। आप म्यू और डी को जो है ना इंच में और, ठीक है, और म्यू को सीपी में, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हो। ये उसके एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर 20 QSC गामा अपॉन म्यू डी। तो यदि मेरे को डायमीटर पता है और गैस की ग्रेविटी और फ्लो रेट भी पता है, सो आई कैन डायरेक्टली डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम दिस फॉर्मूला। So this was just the determination of the Reynolds number for the natural gas when we have the flow rate at the surface in a standard form. अच्छा, QSC हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर MSCF per day में ही, तो if you are using this in MSCF per day, तो convert first it in MSCF per day. MSCF per day में पहले निकाल लेना and then directly इससे आप रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हो। Is the derivation clear to everyone? कहीं है तो please let me know. I can again repeat. If you are not using the circular diameter or the circular pipe, replace this D by DE. That's all. वहां पर आप DE भी यूज कर सकते हैं. That is the method to determine the flow property of the natural gas when you have circular और नॉन सर्कुलर फ्लो चैनल्स, तो उनके लिए है ये। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन? सो गैस फ्लो थ्रू दी पाइपलाइंस में पहला फंडामेंटल है, व्हाट विल बी द रेनॉल्ड नंबर फॉर द नेचुरल गैस व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर और नॉन सर्कुलर पाइप।
तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में, रियल ऑयल फील्ड यूनिट्स में ड्राइव किया गया है। आपको रेलेवेंट यूनिट्स का ध्यान रखना है और किस चीज में आपको डेटा दिया है, किस यूनिट में, किस टर्म में, वही आप कोरस्पॉन्डिंगली यूज करेंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू डिटरमाइन दिस। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग? ठीक है, इफ देयर इज नो डाउट लेट अस मूव अहेड। सो कन्वेंशनली रेनॉल्ड्स नंबर हम ये जानते ही हैं, ठीक है। नाउ अलाउबल वर्किंग प्रेशर फॉर द पाइप्स भी इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन है। तो पी मैक्सिमम ऑलरेडी आप पाइपलाइन इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो, तो आपको ध्यान होगा इंटरनल प्रेशर फॉर द पाइप इज डिफाइंड बाय द बर्लो इक्वेशन एंड इट वाज बेस्ड ऑन द हूप स्ट्रेस। वो याद है, P इज इक्वल टू 2 टी एस ई अपॉन डी, ठीक है। क्योंकि हमने याद है, हमें सिग्मा एच इज इक्वल टू पी डी बाई 2T था ना, जो हमने हूप स्ट्रेस की इक्वेशन देखी है पाइपलाइन इंजीनियरिंग में, गिवन बाय बर्लो। तो उसी इक्वेशन में यदि आप, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द पी इंटरनल प्रेशर ऑफ द पाइप, so it will be replaced by 2T sigma अपॉन डी। एंड ई आपको याद होगा सीमलेस पाइप के लिए यूज होता है, और एक और यूज किया था हमने डिजाइन फैक्टर एफ 0.72 पे, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन इज फर्दर classified in this form where extra care is taken। इनस में जो है टी को इज रिप्लेस्ड बाय टी माइनस सी। सी क्या है? मैकेनिकल अलाउंस है थिकनेस में, जो मैकेनिकल अलाउंस है। सेकंड डायमीटर इज रिप्लेस्ड बाय -2t माइनस सी इनटू वाई। तो ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए हैं, जिसमें सी इज दी मैकेनिकल अलाउंस, जो कि थ्रेड में ग्रूव डेप्थ में कोरोजन इरोजन की वजह से जो थिकनेस में चेंजेस आता है, दैट इज टेकन केयर बाय सी, टर्म सी, ठीक है। पाई है आपके पास टेम्परेचर डीरेटिंग फैक्टर। इट मींस कि टेम्परेचर वेरिएशन से जो चेंजेस होते हैं डायमीटर में, दैट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ बाय वाई। सो इफ योर टेम्परेचर इज अप टू 900 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस वैल्यू 0.5 0.7 बढ़ती चली जाती है एज यू इंक्रीज दी प्रेशर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा केयर है। और ये, हाँ, ये तो याद ही होगा आपको, ई की वैल्यू 1 होगी फॉर सीमलेस पाइप्स। दिस आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग पाइपलाइन इंजीनियरिंग। एस है आपके पास अलाउबल स्ट्रेस, और ये अलाउबल स्ट्रेस वही है हूप स्ट्रेस। टी पाइप थिकनेस है, डी आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला प्लीज आप याद रखना, अलाउबल वर्किंग प्रेशर फॉर द पाइप्स, ठीक है। तो खाली मैंने वही फॉर्मूला जो था पी डी बाई 2T इज इक्वल टू सिग्मा से पी मैक्सिमम निकाला है इनसाइड द पाइप बाय दिस। तो थिकनेस इज रिप्लेस्ड बाय टी माइनस सी, एंड डायमीटर जो है वो क्या होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यस यू कैन आल्सो राइट दिस पी डी बाय 2T इज इक्वल टू सिग्मा। तो P इज इक्वल टू 2ST माइनस सी हो गया, और ये होगा डायमीटर। तो डायमीटर में DO माइनस 2T लिख दीजिए, ठीक है। पाइप का इंटरनल डायमीटर होता है ये एवरेज। तो T की जगह आप लिख दीजिए T माइनस सी, एंड एक्स्ट्रा एक फैक्टर और आ रहा है नीचे Y, जो कि थिकनेस के लिए है। तो डी नोट माइनस 2T माइनस सी इंटू वाई यूज करेंगे आप अब, ठीक है, फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन इन दी पाइपलाइन डायमीटर। अदरवाइज इट कुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक है। वही फॉर्मूला फिर से दोबारा से रीडिफाइन हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, बाकी सबका यूनिट भी इसमें लिखा हुआ है, क्या उनकी वैल्यूज हैं, क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. Now next important value, another important property for the flow of natural gas in the pipeline is defined by the velocity. तो velocity भी define किया गया है, it is given by c by under root rho, ये भी याद रखना. This is the maximum velocity a natural gas can have inside the pipe. ठीक है, तो इसको हम erosional velocity भी बोलते हैं. This is the final and maximum which a pipeline can sustain for the natural gas flow. Rho is density है, c को हम constant बोलते हैं, which is in between 75 to 150. So we can again this equation can be like this. ठीक है, c का वैल्यू 100 ले लो सपोज, और रो की वैल्यू आएगी pm by ZRT. ठीक है, so this can again write like this. QSC we already know in terms of standard. So Q equal to rho A B. We know this. This is actually Q SC. जब ये QSC होगा तो रो भी SC में होगी, डेंसिटी इन SC. This and density is actually the PM by ZRT. तो आपको QSC स्टैंडर्ड में चाहिए तो इसको डिवाइड कर दीजिए. PSC मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, ZSC R into TSC. तो खाली मैंने स्टैंडर्ड टर्म को रिप्लेस किया है. तो ZSC विल बी 1, M कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, R विल बी कैंसिल्ड आउट. ठीक है, तो फाइनली यू विल हैव दिस P into TSC अपॉन ZT into PSC. तो ZT into PSC, P into TSC ऊपर रहेगा. ठीक है, एंड A क्या होगा, पाई बाई 4 स्क्वायर, एंड दिस इज द वेलोसिटी. So this velocity can again be replaced by this equation. तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, दिस फॉर्म में इक्वेशन आ. उसको फर्दर सॉल्व करोगे QSC को, तो इक्वेशन विल बी फाइनली दिस, where Q will be in MSCF per day, D in inches, P is in PSI, T will be in degree Rankine. So maximum velocity you can define by this if you have the natural gas properties or constant आपको पता है. But if you want to determine the QSC based on this V, so that derivation will be like this. This is another derivation for the standard Q when we have the erosional or maximum velocity inside the pipeline. ठीक है, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? तो मैंने क्या किया, आप सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी बता दिया. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इनसाइड द पाइप. उसका जो एक्सप्रेशन है, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी, and that is replaced in this equation for the QSC. Usually you have seen the QSC, but this is QESC. So QE है for the erosional velocity or the maximum velocity. So according to the maximum velocity, what will be the standard Q at the surface? This will be the standard Q. So this is again in the terms of diameter, P, Z and T and gas gravity. If these terms are known and it is asked to determine the standard flow rate for the natural gas when we have the allowable final velocity or the maximum velocity inside the pipeline. So you can directly determine this from this equation. ठीक है, anything else? So today I will stop here. Tomorrow I will start the flow measurement devices. And today whatsoever we discussed the three important property of the natural gas. So first we have derived the
this, what will be the important flow property of the natural gas when the natural gas flow at the surface is defined. तो फ्लो के टर्म्स में और फ्लो रेट के टर्म्स में फर्स्ट वी हैव ड्राइव दी फर्स्ट फ्लो प्रॉपर्टी विच इज द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है. देन वी डिटरमाइंड द मैक्सिमम allowable pressure for the natural gas in pipe. Then we also drive the expression for the maximum flow velocity for the natural gas in pipes. ठीक है. तो दोनों हमने तीन फॉर्मूले मैंने आपको आज दिखाए हैं, तीनों के डेरिवेशन आपको दिखाए. इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन अगेन रिपीट. वी हैव सम टाइम. एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? ठीक है. इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं बीच में, जिसमें हमने हाइड्रोलिक रेडियस भी डिफाइन किया है, इफेक्टिव डायमीटर भी डिफाइन किया है फॉर द नॉन क्रॉस सेक्शनल एरियाज. तो वो भी इसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया है. तो वेर एवर यू हैव एनी क्वेश्चन या कोई डाउट है तो लेट मी नो. नो डाउट. ठीक है. देन वी विल मीट टुमारो. आई विल स्टॉप हियर टुडे. So tomorrow we'll start with the gas flow measurement. Okay then. Bye everyone.